everyone, welcome back to my channel. And today topic in C language is that compilation process in C. So what is the process of compilation your code in C language? That is the I'm going to explain in this session. So basically compilation is a process of converting your source code into the object code. That is binary, because C language understand the binary. If you are going to write any message, suppose you have written hello program, so that hello program you are typing in a English, but directly computer cannot be understand that. It should be converted into the binary language. Because if you will say, so you will write something and you will say, okay, I'm writing this program, please give print this program output on the console window. So how you will interact in with your programming language? And why we need the programming language? Basically for that also I have make one tutorial, because to understand the computer language, so we need a programming language, because we have to give some input in a computer, and it will computer will calculate and will revert back to you. So because C language use the binary code, so it understand the binary, the C compiler. That's why we have to convert your code first into that object code we call binary. Okay, so this is the process how it will be working. I am going to explain you, because with the help of the compiler only you can execute your code. The compiler check the source code for the syntactically for or structural, if you are it is not giving any error, you have written your code complete in complete way, you are not missing any semicolon, you are not missing any curly braces, so kind of thing. So basically once you will compile your code, it generate the object code. How I'm going to explain you the things. What is the binary code? It will be in 0 1 form. Suppose I have written here, suppose this is your C program, this is your C program. Okay, so here once you will compile your code, what will happen? It will generate your into the object code, you can say object code, that will be in 0 1 form, 0 1 0 0 something, and 0 1 1 1, like this it will be 0 0 0 something. So the C compilation process convert your source code taken as an input into the object code or machine code, you can say. What is this? This is object code, or this is your dot file, c dot file. Okay, suppose I have given the name a.c. Okay, the compilation process can be divided into 4 steps. First is a pre-processing, second is a compiling, third is a assembling and linkage. I'm going to write this. Suppose here I will be taking this text box. Okay, in as I told you, the compilation process can be divided into the 4 steps. What will be the first step? First steps will be pre-processing. You use always what you have used, hash include something you are using na. So that is hash, that hash is a pre-processing. Okay, I will write in a notepad so that will be easy for you to understand, not in a paint. Okay, I'm going to open new tab here and writing notes for you. So basically the compilation process can be divided into 4 steps. The first step is a pre-processor, and the second will be the compiling your code, and third will be the assemble, and fourth will be your linking, how you will do the linking. So these are the 4 steps I have divided. The pre-processor take the source code as an input, and it remove all the comment from the source code, whatever the comment you have using, double using this double slash. How you add the comment? Using this. So using this double slash you can use the comment. Okay, the preprocessor take the preprocessor directive and interrupts. For example, you have used stdio.h, आप ये यूज कर रहे हैं stdio.h, तो आप कैसे इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में इसको? व्हाट यू हैव यूज, व्हाट डायरेक्टली अवेलेबल इन दिस कोड? So basically before that you use the hash symbol, that is the pre-processing. To include this library you are having one keyword include.
include stdio.h. Okay, so basically what will happen, for example, if stdio.h the directory is available in your program, then the preprocessor interrupts that directory and replace this directory with the content of the standard input output header file. So how it will be, that I have already given the example in the last session also. Here I will explain you. So first is a preprocessor. That preprocessor, which is the preprocessor in this is hash symbol. This is a preprocessing. So अगर आपको कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है तो सबसे पहले आपको प्री प्रोसेसर का यूज करना ही पड़ेगा। प्रोग्राम से स्टार्ट होने से पहले को ही हम प्री प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो चीज आप यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेस। तो प्री प्रोसेस यहाँ पे क्या है, मेरा हैश है। हैश इंक्लूड, मेरे पास प्रिंट एफ जो फंक्शन है जो मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए कंसोल पे यूज होता है, वो मेरा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर होता है। और ये लाइब्रेरी मेरी इस लाइब्रेरी को मुझे अपने कोड में इंक्लूड कराने के लिए इंक्लूड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो ये अभी प्रोग्राम वर्क कैसे करता है मेरा, ठीक है। तो आप इसको कैसे करने वाले हैं, मेरे पास सबसे पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है, जो कि ये मेरा सोर्स कोड कहलाता है। क्या कहता है आपका, ये सोर्स कोड। ये सपोज आपका सोर्स कोड है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद में आपके सोर्स कोड के बाद में, ओके यहाँ पे लिखते हैं अलग लाइन में, ये सोर्स कोड मतलब ये आपका प्री प्रोसेसर है। इसके बाद में ये क्या, सोर्स कोड क्या है, यहाँ पे ये प्री प्रोसेसर आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है प्री प्रोसेसर। ओके, उसके बाद में ये किसको एक्सटेंड करता है कोड आपका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कंपाइलर। क्या होता है नेक्स्ट स्टेप आपका, कंपाइलर होता है। इसका साइन आप लगा दीजिए यहाँ पे, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे कंपाइलर। और ये जो कंपाइलर होता है ये किसको एक्सटेंड करता है, प्री प्रोसेसर के बाद में आता है। तो इसको आप यहाँ पे ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं, एक्सपेंडेड कोड, उसके बाद कंपाइलर आ जाएगा। देन मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पे, असेंबलर। ये असेंबलर होता है। और असेंबलर में मतलब ये कहते हैं असेंबली कोड होता है आपका जो उसमें लिखा होता है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं असेंबली कोड। देन उसके बाद में ये काम क्या करता है आपका, लिंक करता है। ये लिंकर होता है। लिंकर ये एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जो आपकी ये सी डॉट फाइल होती है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। और ये जो लिंक होता है इसमें आपकी कौन कौन सी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, लाइब्रेरी, ये सारी लाइब्रेरीज रखता है जो हमारी यहाँ पे यूज होती है, stdio.h। तो ये सारी लिब यहाँ पे मेरे रहती है। और अदर ऑब्जेक्ट फाइल भी आपकी यहाँ पे कंपाइल होती है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है आपके कोड को कंपाइल करने के लिए। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं ये क्या क्या होती है। तो मैंने आपको प्री प्रोसेसर का ऑलरेडी बताया है। सो द सोर्स कोड इज द कोड विच इज रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर फॉर द एंड द सोर्स कोड फाइल इज गिवन इन एक्सटेंशन .c। मतलब जो भी आपने कोड लिखा है यहाँ पे, जो भी आपने यहाँ पे एक कोड लिखा है, सपोज मैंने इस फाइल का नेम दिया यहाँ पे a.c, मैंने ये सी डॉट लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सीपीपी में रहता है। तो जो भी आप कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं, मैंने यहाँ पे कोई भी कोड लिखा है जो एक्सटेंशन आपका .c से सेव होता है और आप उसमें हैश इंक्लूड लगाते हैं, वो आपका प्री प्रोसेसर कहलाता है। तो the source code is a first pass to the preprocessor and then the preprocessor expand this code. After expanding the code, the expanded code is passed to the compiler. So जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। तो इसमें मेरा प्री प्रोसेसर क्या है, ये हैश का जो सिंबल है ये आपका प्री प्रोसेसर है। तो प्री प्रोसेसर क्या काम करता है, आपके कोड को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद में वो किसको पास करता है, कंपाइलर को पास करता है। तो कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है। तो कंपाइलर क्या होता है, तो द कोड विच इज एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर। सो जो कोड आपका कंपाइलर अपने प्री प्रोसेसर से जो एक्सपेंड किया है उसने, ये कंपाइलर को पास करता है आपका कोड। सो कंपाइलर क्या करता है, आपके कोड को असेंबली कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। सो मैंने इसको लिखा वॉइड मेन, और मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं प्रिंट एफ, चैनल का नाम लिखते हैं हेलो इंटेलिजेंस एक्सचेंज। ये मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया और हमने इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया।
सो ये क्या काम करता है कंपाइलर, आपका सोर्स कोड के जो आपने लिखा है इस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और असेंबल क्या करता है, असेंबल जो होता है द असेंबली कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग एन असेंबलर। so basically it will be the same your source file and the extension will be the .obj। बेसिकली असेंबलिंग का यूज यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है, ये हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया है कि लिंक का काम क्या होता है, जो ये लाइब्रेरी होती है आपको कैसे लिंक करनी होती है यूजिंग इन इंक्लूड, सो ये आपका लिंकिंग कहलाता है। तो बेसिकली ये छोटा सा एक प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है और ये एक प्रोसेस है जैसे जो मैंने आपको समझाया है। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, पहले आपका एक सी प्रोग्राम होता है, उसके बाद में आपका प्री प्रोसेसर होता है, फिर आप उसको एक्सपेंड, जो प्री प्रोसेस क्या काम करता है, आपका कोड को एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड योर सोर्स कोड, देन कंपाइलर कंपाइल करता है और वो आपका जो फाइल है कन्वर्ट हो जाती है। सपोज a.c था पहले प्रोग्राम आपका जो आपने सेव किया है, उसके बाद में प्री प्रोसेसर के बाद में वो a.i हो जाता है, फिर उसके बाद में आप कंपाइल करने के बाद में वो a.s, देन आपका जो असेंबलर होता है वो आपका फाइल को कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, दैट विल बी a.object, और फिर लिंकिंग के थ्रू वो एग्जीक्यूटेबल कोड को बनाता है, दैट विल बी द a.exe फाइल। फिर आपके पास लोडर होता है और फिर आपके पास ये एग्जीक्यूशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया, हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे पेन चला के मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे रहता है क्या। सपोज ये आपका कोड है, ओके यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, पेंट में आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये आपका प्रोग्राम फाइल सी है, मतलब हमने इसका प्रोग्राम फाइल का नेम दे दिया यहाँ पे a.c। ये मेरी फाइल है a.c। उसके बाद में हमारे पास में प्री प्रोसेसर होता है। ये क्या करता है, आपके कोड को एक्सटेंड करता है। और यहाँ पे जो आपके फाइल का नेम हो जाता है वो कहलाता है, एडजस्ट कीजिए भी इसको, थोड़ा स्क्रीन पे प्रॉब्लम है एक्चुअली। उसके बाद में यहाँ पे हमारा कंपाइलर का काम आता है। कंपाइलर उसके बाद में ये आपका पास यहाँ पे, इसको भी एक बॉक्स में रख देते हैं हम। असेंबली मतलब ये जो कोड है आपका वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, a.a। ये एक्सटेंशन है, ये आपको याद रखना है, ये आपका कन्वर्ट करेगा इसको। क्या मिल जाता है आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद में, ऑब्जेक्ट कोड, करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कोड है और उसके बाद में क्या कॉल होता है आपका,
लिंकर, राइट। इसके सामने लिख देते हैं हम यहाँ पे। लिंकर के बाद में आपको कौन सा आता है? एग्जीक्यूटेबल कोड। वो क्या होता है आपका? EXE फाइल में जो कन्वर्ट करता है। यस, राइट। और इस फाइल को आप क्या फाइल बोलते हैं? यस, EXE, राइट। और उसके बाद में आपका कोड रन होता है। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ाया था आपको? यस, लोडर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लास आपकी लोड हो जाएगी। उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले होते हैं? लोडर यूज़ करने वाले होते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं। अब ये टैब पेन जो है वो चल नहीं रहा है डेस्कटॉप पे, तो इसलिए मुझे पेंट का यूज़ करना पड़ रहा है। अभी आप एडजस्ट कीजिए ऐसे ही। ये एग्जीक्यूशन कोड, और ये आपका फाइल में आपको आंसर करके देगा, जो कि आपका ये EXE फाइल बन जाता है कोड करने के बाद में। अब सिंपल से एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हैं। ये तो बच्चों के लिए है जो मीन्स कॉलेज में है, तो उनको ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आप सिंपल सा भी एक कोड बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम आपको बताते हैं। कल आपको अगर ये याद नहीं रहता है इतना सब लिखना, तो आप सिंपल सा एक स्क्वायर बनाइए। यहाँ पे आप ये अपनी फाइल का नाम दीजिए। यहाँ पे आपका ये सोर्स कोड है, इसको यहाँ को ऐसे लिखिए, सोर्स कोड। मेन सोर्स कोड है तो क्या हो जाएगा? ये जो फाइल है आपकी, सपोज a.c फाइल है, ये सोर्स कोड है आपका। उसके बाद में आप इसका साइन लगाइए, एरो का साइन लगाइए, सॉरी, एरो का साइन लगाइए। यहाँ पे एक बॉक्स और बनाइए, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड। और ये काम कौन करता है आपका? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर, राइट। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं सिंपल सा। वो तो एक प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है आप कमेंट में पास कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मैं अभी फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक hello.c है जो मेरा पास होता है प्री प्रोसेसर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, और वो क्या करता है अपने सोर्स कोड को एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करने के बाद में कंपाइलर को पास करता है। ओके, सो द एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज पास टू द कंपाइलर, एंड द कंपाइलर कन्वर्ट दैट एक्सपेंडेड सोर्स कोड इनटू द असेंबली कोड। असेंबली कोड में होने के बाद में वो एक फाइल जनरेट करता है, जो कि आपका hello.s करके आपने बनाया था जो फाइल। हमारी प्रोग्राम फाइल का नाम हमने क्या रखा था? तो a.s करके प्रोग्राम फाइल बनाया। उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है, तो मेरा जो असेंबली कोड होता है वो सेंड करता है असेंबलर को आपके कोड को। सेंड करने के बाद में वो जो कोड होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में आपका आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोड, द लिंकर क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल फाइल एट द लोडर विल देन लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एक्सटेंशन, एंड इट विल गिव यू द आउटपुट टू यू। ओके, सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है। तो अभी इसके बाद में हम अपने कोड पे जाते हैं, जो हमने एक कोड लिखा था यहाँ पे, हेलो प्रोग्राम करके लिखा था। मिनिमाइज करते हैं विंडो को। यहाँ पे टर्बो C++ पे जाते हैं, हम इसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं। हाँ, हेलो ये दिया था नेम, ये नेम दिया था। तो यहाँ पे ये आ गया है। अभी मुझे इस फाइल को रन कराना है, तो आप कैसे करेंगे? आप कंट्रोल F9 का यूज कर सकते हैं, कंपाइलर रन दोनों हो जाएगा। प्रोग्राम रन हुआ, आपको कोई विंडो पे आउटपुट नहीं दिखाई, चला गया। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, यहाँ पे कैट कैरेक्टर हम यूज करते हैं। ये आपका स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होता है, लेकिन हमें इसके लिए भी डायरेक्टरी लिखनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्टरी नहीं लिखेंगे तो वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका, ये conio.h के अंदर आता है, मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर आता है, studio.h के अंदर नहीं आता है। फिर से आप कंट्रोल F9 कराएंगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो इंटेलिजेंस एक्सचेंज, हेलो इंटेलिजेंस एक्सचेंज 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि